Okay, class 9th students, yesterday in lesson 2 of economics, people as resource, you studied about education of the population. And today we are in topic health, health of the population, how this topic is very important for creating better human resource. Health, firm maximize profit. Firm means private firm or company maximize profit. Do you think any firm would be induced to employ people who might not work efficiently as a healthy worker because of ill health? Company always thinks about its profit. Then, will a company employ a people of ill health? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. No, because It would the not company imply. wants a result. Yeah. Result of profit. So healthy people are required, mentally and physically healthy. The health of a person helps him to realize his potential and the ability to fight illness. An unhealthy person becomes a liability for an organization indeed. Health is an indispensable basis for realizing one's well-being. That means if a person is healthy, then only he can give his best. He can give his labor in the best way for the benefit of the company or for the country, anywhere. So health is very important. Unhealthy person is a liability. It is a burden. So person should not be a burden. People should be always fit and fine, physically as well as mentally. Because a fit person is required everywhere, even in the family. Suppose in the family, if a person is sick almost, then he becomes dependent on other. It is no doubt we should take care of the disease or ill people, but they are of no contribution to the family. Okay, so in the family, in the firm or in organization, whether it is a private firm or a government organization, everywhere we require fine. Mute everyone. No, everyone is. If there is some noise from any side, at present there is no noise. Okay. Yes. Improvement in the health status of the population has been the priority of the country. A country should always pay attention on the health of the people. Okay. Our national policy to aim at improving the accessibility to healthcare, family welfare, and nutritional service with a special focus on underprivileged segment of the population. So for what we have to do for maintaining a good health, improving accessibility of healthcare. Means people should be easily accessible to the healthcare centers. Family welfare and nutritional service. Nutritional service means related to balanced diet. Every person should get balanced diet, healthy food, because only medical facility is not enough. First, we should get proper, well-balanced diet with a special focus on underprivileged segments, special focus on poor people, because they are lacking in basic amenities, food requirement, etc. They are not getting proper food or balanced diet, you can say. Over the last 5 decades, decades means 10 years, period of 10 years. 10 years. Last 5 decades, India has built up a vast health infrastructure and manpower required at primary, secondary, and tertiary care in government as well as in the private sector. So at every level,
Primary level means just beside your living area, where you are living, in a colony, in a village, there should be a healthcare center. In the village also, in the town also, and on the higher level also, like big hospitals, etc. So at every level, there should be facility of healthcare so that people can go to that center for their treatment. You see, there are many big hospitals like AIMS, like Apollo. IGMS. Yes, these are very big centers. And there are some small dispensaries like centers also in the nearby areas. So where on this, which page? Page number 23. This is? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Over the last 5 decades, India has built up a health infrastructure and manpower required at primary, secondary, and tertiary care in government as well. In the private sector, मतलब दोनों तरह के अरेंजमेंट है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज भी हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स भी हैं. These measures adopted have increased the life expectancy to over what? 68.3 years in 2014. 8 years. 68 point, repeat? 3 years. 3 years. 3 years in the year 2014. 14. 14. Yeah, so all of you, there are some mistakes regarding the data because all the books are not of the recent edition. So if there is some old book, you may correct the data. Right there with pencil. And life expectancy is a big indicator of better quality of life, healthy life. If people are healthy, if people are getting all medical care, that means their life expectancy will increase. Life expectancy, what is the other word for life expectancy? Span of life. Lifespan. Lifespan. और longevity, है ना, कितने सालों तक लोग जीवित रहते हैं, ये डिपेंड करता है कि वहाँ किस क्वालिटी का या मतलब हेल्थ केयर अवेलेबल है या नहीं, है ना. Next, infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to 34 to in 34 in 2016. 2016. 34 in 2016. देखो कितना सारा डिफरेंस आया है ना. 1951 में कितना था? 147. हाँ 147. तो 147 के कितना हो गया बताओ? 34. 34 in 2016. हाँ, तो वो धीरे धीरे घटा. 2000 में 75 था और फिर 2016 में कितना हो गया घट के? 34. हाँ, और कुछ बोल रहे थे कोई? बताओ, कुछ पूछना है? देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट किसको कहते हैं? इफ अ चाइल्ड डाइज within 1 year of age, it is known as infant mortality. ठीक है, तो जब हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं मिलेगा तो जो न्यू बॉर्न बेबी है और वो अगर वीक है तो हो सकता है कि वो कुछ महीनों के अंदर, 1 साल के अंदर उसका डेथ हो जाए, तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी कहते हैं. इंडिया में ना ये बहुत हाई था. तो इमेजिन करो कि इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत कितना था? 1951 में 147 था, जो घट के 75 आया 2000 में, फिर और घटा तो कितना हो गया? 34 आ गया 2016 में. As for 1000 people. हाँ, 1000 पीपल. देखो, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सारे चीज ना पर 1000 पर्सन पे निकालते हैं, ठीक है ना. क्रूड बर्थ रेट्स have dropped
to 26 point 20.4%. 20.4%. and death rate to 6.4%. 6.4%. 4%. 6.4% within the same duration of time. Time. ठीक है. क्रूड बर्थ किसको कहते हैं? एक बर्थ रेट होता है और एक दूसरा क्या होता है? क्रूड बर्थ रेट. तो बर्थ रेट में ना इन्फेंट मोर्टेलिटी को माइनस करके बताया जाता है, लेकिन अगर इन्फेंट को भी इंक्लूडेड रखें उसमें तो उसको क्रूड बर्थ रेट कहते हैं. ठीक है ना? बात समझ गए? Yes, ma'am. जैसे Yes, बर्थ ma'am. Yes, ma'am. बर्थ रेट का एक कॉमन डेफिनेशन देना पड़े तो क्या लिखेंगे कि द टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 persons in a year During a particular period of time. हाँ, इसको अपने नॉलेज के लिए लिख लो तो तुम, व्हाट इज बर्थ रेट? बताइए ना. हाँ, फिर से बोलो, व्हाट इज बर्थ रेट? Ma'am, birth rate is the number of babies born there for every 1000 people during a particular period of time. हाँ, तो इसी को लिखो कि बर्थ रेट द टोटल नंबर ऑफ, ऐसे लिखो द टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ, वो भी ठीक है तुम्हारा. लिखो द टोटल नंबर ऑफ लाइफ, LIVE, लाइफ बर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइफ बर्थ का मतलब होता है ना कि उसमें से इन्फेंट मोर्टेलिटी वाले नंबर को हटा दिए. ठीक है ना, इसलिए लाइफ बर्थ कहते हैं. द टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ पर 1000 persons in a year, per 1000 persons in a year is known as birth rate. Yes, ma'am. ठीक है. अब यहाँ पे तुम्हारा ये क्या डेफिनेशन है? क्रूड, एक टर्म है क्रूड बर्थ रेट. तो ये बर्थ रेट से ये अलग हो गया. क्रूड बर्थ रेट का मतलब हो गया कि उसमें सारे इंक्लूडेड हैं, इन्फेंट भी, जो हाँ, जो एक साल के Including the अंदर infant mortality. हाँ, जो एक साल के अंदर जिसका डेथ भी हो जा रहा है वो सब इसमें इंक्लूडेड है. तो वैसे बर्थ रेट को क्रूड बर्थ रेट कहते हैं. The crude birth rate have dropped from 26.1 and death rate to what? Repeat. 6.4%. 6.4. 6.4 within the same duration of time. हाँ. Yes, ma'am. देखो, डेथ रेट का भी घटना एक अच्छा इंडिकेशन है. वो भी मेडिकल केयर को रिवील करता है कि अगर मेडिकल फैसिलिटी बेटर है तो डेथ रेट भी घटेगा, है ना. बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता है, ओल्ड एज होने पे तो डेथ होगा ही, लेकिन वो ये घटा पहले से. Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. ठीक है ना. Increase in life expectancy and improvement in child care are useful in assessing the future progress of the country. अगर हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छा रह रहा है और चाइल्ड केयर बेटर है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कंट्री का प्रोग्रेस होना ये है, नेचुरल है. इंक्रीज इन लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. ठीक है ना. वही लाइफ स्पैन या लाइफ एक्सपेक्टेंसी is good quality of life marked by self-confidence. Reduction in infant mortality involves the protection of children from infection. ठीक है, ये पॉइंट समझ गए. रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो छोटे बच्चे, जो एक साल के अंदर वाले बच्चे का डेथ रेट अगर घटता है तो ये क्या पता चलता है कि हमने चिल्ड्रन को इन्फेक्शन से काफी प्रोटेक्शन दे दिया है ना. बहुत सारी बीमारी जो पहले फैलती थी वो सब अब नहीं हो रहा है. इंश्योरिंग न्यूट्रिशन अलॉन्ग विथ मदर एंड चाइल्ड केयर. न्यूट्रिशन मतलब फूड का जो न्यूट्रिशन है वो मिलना चाहिए और साथ साथ मदर और चाइल्ड दोनों का केयर होना चाहिए. इन्फेंट मोर्टेलिटी के साथ ये मदर एंड चाइल्ड केयर दोनों इंक्लूडेड है. What is the percentage increase in dispensaries from 1951 to 2001? हाँ, ये डेटा दिया हुआ है. फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द डॉक्टर्स एंड नर्सिंग पर्सनल फ्रॉम 1951 टू, तुम्हारे बुक में दूसरा होगा 2016. मैम 15. हाँ, तो देख रहे हो ये डेटा देखो और इसका आंसर करना है आपको. और जो एब्रीविएशंस लिखे हैं ना यहाँ पे, SC, PHC, CHC, इसका भी फुल फॉर्म देख लो. ये सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर,
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है ना। तो ये सब सारे कितने बढ़ गए, 1951 में इतने थे और बढ़ते बढ़ते कितने हो गए 2016 का बताओ। न्यू डेटा जिसके पास है, 1,85,983. हाँ तो देखो Dispensaries and hospitals. हाँ, जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं तरह तरह के, प्राइमरी लेवल पे हैं या कम्युनिटी लेवल पे हैं, तो सब के सब का नंबर इतनी तेजी से बढ़ा, ठीक है। डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स ये कितने बढ़े, इसका लास्ट डेटा बताओ। 30,044. Ma'am, 30,044. 3,100. अब देखो हॉस्पिटल में जो बेड्स है ना, उसका तो अभी नया डेटा लोगे तो बहुत आगे बढ़ा हुआ होगा, है ना। तो भी 2016 का लगभग बताओ। Ma'am, 6,34,710,761. हाँ अभी ना कोरोना के चलते ना बहुत ज्यादा कैपेसिटी बढ़ाई गई है हॉस्पिटल्स की। और फिर डॉक्टर्स, जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं, उनका नंबर लास्ट में क्या है अभी बताओ, रिसेंट। Ma'am, 17,982. एंड नर्सिंग पर्सनल्स, है ना, नर्सिंग वाले फील्ड में जितने भी मेल हो या फीमेल है जो काम कर रहे हैं, वो Ma'am, कितने, 28,78,182. ठीक है ना। तो ये इस तरह का डेटा किसी को याद नहीं करना है, रटना नहीं है। ये अगर क्वेश्चन इसके ऊपर आता भी है ना, तो ये डेटा दिया हुआ रहता है और तुमको कंपेयर करके डेटा स्टडी करके आंसर लिखना रहता है, ठीक है ना। हम डेटा याद नहीं होगा? नहीं, वो रटना नहीं है, आपको याद नहीं करना है। क्वेश्चन में डेटा नहीं मांग सकता है। कभी कभी अब तुम अपने आंसर को थोड़ा अच्छा लिखने के लिए दे सकते हो कोई रिसेंट वाला डेटा, लेकिन ये डेटा बहुत पूछा नहीं जाता है ये सब। रिसेंट डेटा याद करना। हाँ रिसेंट वाला थोड़ा बहुत याद रखना, या कोई ऐसे जरूरी नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं लगाना। So do you think the increase in the number of doctor and nurses adequate for India? If not, why? No, ma'am. हाँ, इसमें आपको no ही लिखना Because है। the population is increasing. No, the number of doctors and nurses are not adequate in India because the population of India The is population very is increasing. high, and in the ratio of population it is insufficient. Number of doctors and nurses are insufficient. What other facilities would you like to provide in hospital? ठीक है, तो तुम अपने मन से इसमें कुछ भी लिख सकते हो, और जैसे हर एक हॉस्पिटल में मेडिसिन, हाँ, और बताओ। Medicals. बेड्स, फूड फॉर द पेशेंट, हर हॉस्पिटल में ना फूड अवेलेबल नहीं है पेशेंट के लिए, कुछ ही हॉस्पिटल में है। तो जो पेशेंट है उसके लिए तो फूड होना चाहिए, हॉस्पिटल से मिलना चाहिए। डिस्कस अबाउट मैम डोनेशन, हाँ डिस्कस अबाउट द हॉस्पिटल यू हैव विजिटेड। चलो ये सब बस ऐसे ही डिस्कशन का है। इस पेज में थे 23 से आगे थे ना हम लोग। 24. हम 24. हाँ ठीक है। मैम परसेंटेज क्वेश्चन आ सकता है, मतलब बिहार में कितने लिटरेसी रेट है ये। हाँ वो सब याद रखना चाहिए, लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, अगर लेसन में है तो, ठीक है ना। तो ये डेटा तुम लोग डिस्कस कर लिए ना। Yes, ma'am. यस मैम। सॉरी, हाँ ये डेटा नर्सिंग पर्सनल ये सब हो गए। तो Yes, ma'am. क्वेश्चन और देख लो, एक दो क्वेश्चन और लास्ट वाले। कैन यू ड्रॉ ग्राफ यूजिंग दिस टेबल, है ना, ग्राफ में तो डिपिक्ट कर ही सकते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जैसे जो ग्राफ में एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है ना। तो Yes, ma'am. एक्स एक्सिस को बेस मानते हैं, एक्स एक्सिस को, तो बेस में तुम ईयर लिख दो, जैसे 1951, 1961, 1971 ऐसे करके अब ईयर लिख दिए सारा, और इस तरफ नंबर्स लिख दो, नंबर का एक स्केल बना लो वर्टिकल साइड में, और जैसे तुम लोग मैथ में बनाते हो ना ग्राफ, वही चीज है, और फिर इसको आप उसमें शो कर सकते हैं। बनाए हो कि नहीं मैथ में
लाइन ग्राफ बनाया है मैम। Yes, ma'am. तो वही है, ये हम लाइन ग्राफ यूज करके आप बना सकते हैं इसको, कि बेस में ईयर रखे और साइड में नंबर्स को रख दिए और नंबर्स का एक सर्टेन स्केल बना लिए। वो डेटा को देखते हुए स्केल बनाया जाता है ना। जैसे यहाँ डेटा लाख में है, 1000 से लेके lakhs में है, तो 1000 के गैप पे हम ये बना लेंगे स्केल वर्टिकल। There are many places in India which do not have even these basic facilities. Just 4 states like Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Maharashtra have 81 out of 181 medical colleges. No ma'am, 381 out of 381 300. medical colleges and 301 dental colleges. हाँ ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि ये जो कुछ स्टेट्स हैं वहां पर ज्यादा मेडिकल फैसिलिटी है, ठीक है ना, और बाकी स्टेट्स में बहुत कम है, मतलब इक्वालिटी नहीं है स्टेट वाइज मेडिकल फैसिलिटी की। मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं बताओ, ये इन चारों स्टेट में 381 आउट ऑफ कर्नाटका, आंध्र आउट प्रदेश ऑफ नहीं दिया है, हाँ आउट ऑफ नहीं दिया है। नहीं And दिया the है। total is not given. In अच्छा country. अच्छा Yes, ma'am. अच्छा, on the other hand, states like Bihar and Uttar Pradesh have poor health indices and few medical colleges. ठीक है, तो हर जगह मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल का नंबर बराबर नहीं है। कुछ मैम एक्टिविटी मगर है, बिहार में इंक्रीज हो रहा है। सब जगह इंक्रीज हुआ है, इस बार तो बहुत इंक्रीज हुआ है पिछले 2 साल में, लेकिन फिर भी अभी भी इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं है अभी। अभी तो और भी तैयारी हो रही है ना कि थर्ड वेव के लिए भी लोग तैयार हो रहे हैं, तो Yes, ma'am. हाँ, तो visit a nearby hospital either government or private and note down the following details: how many beds are there in the hospital you have visited। चलो ये तो एक एक्टिविटी हो गया, कहीं तुम हॉस्पिटल में गए होगे तो देखे होगे कि कितने रूम्स हैं, कितने बेड्स हैं, yes sir। How many doctors are there in the hospital, how many nurses work in that। Besides, try to gather the following additional information: how many hospitals are there in your locality, how many dispensaries are there in your locality, right। ये सब क्या है आपके लिए, कुछ कुछ एक्टिविटी है ऐसे ही प्रैक्टिकल। अब अगला टॉपिक आ जाता है एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। Unemployment. तो तुम लोग में से एक इसकी रीडिंग करो। Yes, ma'am. Shakal's mother, Sheila, looked after the domestic chores, children, and helped her husband Buddha in the field. Shakal's brother Jitu and sister Situ spent their time playing and roaming. Can you call Sheila or Jitu or Situ unemployed? If not, why? ठीक है ना, अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं वो तो काम नहीं कर रहे हैं तो वो थोड़ी ना उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, वो नहीं आएंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होना चाहिए, एक सर्टेन एज लेवल है, मतलब 15 ईयर से ऊपर होना चाहिए, और उनको काम करने का डिजायर है और काम नहीं मिल रहा है, तब उसको कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। और जैसे ये है शाकाल की मदर शीला, वो घर के काम देखती है ना, डोमेस्टिक कोर्स में वो बिजी रहती है, तो उसमें तो उसको पैसा नहीं अर्न होता है और वो बाहर जाके मनी अर्न करने की कोशिश भी नहीं करती है, तो ये भी अनएम्प्लॉयड में नहीं आएगी, ठीक है ना। इसका भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, घर में जो काम कर रही है उसको हम अर्निंग में नहीं जोड़ते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ही नहीं है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में भी उसको नहीं जोड़ा जाएगा। चलो यहाँ से पढ़ो, तुमको एग्जाम्पल मिल जाएगा। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find jobs. Sheila is not interested in working outside her domestic domain. Jitu and Situ are too small to be counted in the workforce population. Neither Jitu, Situ, or Sheila can be counted as unemployed. अब तुम लोग समझ गए कि जीतू और सीतू तो बच्चे हैं, तो वो नहीं आएंगे इसमें, क्योंकि अनएम्प्लॉयड के कैटेगरी में आने के लिए एज लेवल जो है ना वो कम से कम 15 होना चाहिए, ठीक है, और 59 तक होना चाहिए। 59 से ऊपर वाले को भी हम रिटायरमेंट में ले लेते हैं, तो वो भी अनएम्प्लॉयड में नहीं आएंगे। और जो हाउस होल्ड वर्क करती है जो वीमेन, जो लेडीज, और वो डिजायर ही नहीं करती बाहर निकल के काम करने का, तो उसको भी हम अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं रख सकते हैं। यहाँ से पढ़ो, द वर्क फोर्स
The workforce population includes people from 15 years to 59 years. Shaka's brother and sister do not fall within this age group, so they cannot be called unemployed. Shaka's mother Sheila works for the family. She is not willing to work outside her domestic domain for payment. She too cannot be called unemployed. Shakal's grandparents, although not mentioned in the story, cannot be called unemployed. हाँ, अब देखो ग्रैंड पेरेंट्स का तो एज 60 एंड अबव ही होगा, तो इसलिए उनको भी हम अनएम्प्लॉयड में नहीं रख सकते। अगर कोई काम नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहे जाएंगे। अगला देखो, यहाँ से पढ़ो। In case of India, we have unemployment in rural and urban areas. However, the nature of unemployment differs in rural and urban areas. In case of rural areas, there is seasonal and disguised unemployment. Urban areas have mostly educated unemployment. हाँ, एक यहाँ पे क्वेश्चन पहले लिख लो। What are seasonal and disguised unemployment? What are seasonal and disguised unemployment? Yes, ma'am. देखो सीजनल नाम से ही क्लियर है कि ये पूरे साल भर जिसे काम नहीं मिलता है, मतलब कुछ ही सीजन में ये बिजी रहे। ये इंडिया के एग्रीकल्चर में बहुत होता है। Any particular season. हाँ, एग्रीकल्चरल सीजन में वो सब लोग को काम रहता है, लेकिन जब एक ऐसा टाइम आता है जब कोई काम ही नहीं रहता, फिर हार्वेस्टिंग के टाइम में उनको काम रहता है, तो इसी को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे पूरे सालों भर उनके पास लगातार जॉब नहीं है, वर्क नहीं है, तो उसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। वो सीजन वाइज वेरी करता है। और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तब कहेंगे कि मान लो कि 5 आदमी का काम है, 5 persons can do a work, but in that work 7 persons are engaged. So these two are actually the example of disguised unemployment, है ना? कि जहाँ इंडिया में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, फैमिली मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो जो 5 ही आदमी काम कर सकता है, उसको करने के लिए 8 आदमी लगे हुए हैं, तो उस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ से इसको पढ़ो। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस। Seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. People dependent upon agriculture usually face such kind of problem. There are certain busy seasons when sowing, harvesting, weeding, and threshing is done. Certain months do not provide much work to the people dependent on agriculture. हाँ, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर में सोइंग के टाइम, सोइंग मतलब जब बीज डालते हैं, सीड्स डालते हैं, उसको सोइंग कहते हैं। तो उस समय बहुत काम है। जब बीच में जब प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं उस समय काम बहुत कम हो गया। हार्वेस्टिंग के समय बहुत बिजी रहते हैं रूरल एरियाज के पीपल, और वीडिंग भी करते हैं, मतलब घास फूस की सफाई करते हैं। थ्रेशिंग मतलब ग्रेन्स निकालना, उसमें से जो हार्वेस्टेड क्रॉप है ना, उसमें से ग्रेन्स निकालने को थ्रेशिंग कहते हैं। तो इस तरह से ये समय बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन पूरे साल में बहुत महीने ऐसे मिल जाते हैं जब उनको कोई काम नहीं रहता है। तो ये हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रज्ञा, शिवांगी, अंशुल, माइक बंद कर लो। जो बच्चे जो रीडिंग करेंगे सिर्फ वही माइक ऑन रखना, ठीक है? तो तुम्हारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का हो गया। अब दूसरा देखो, कोई दूसरा बच्चा पढ़ो। इन केस ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, In case of disguised unemployment, people appear to be employed. They have agricultural plot where they find work. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engage 8 people. Three people are extra. These 3 people also work in the same plot as the others. The contribution made by 3 extra people does not add to the contribution made by the 5 people. If 3 people are removed, the productivity of the field will not decline. The field requires the service of 5 people and the extra 3 people are disguised unemployed. ठीक है।
तो समझ गए ना कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट यस क्या मैम। है। वो दिखाई नहीं देता है। डिस्गाइज मतलब ऊपर से बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक्चुअली वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है। जहाँ पे 5 आदमी से ही वो प्रोडक्शन हो सकता है, वो काम कंप्लीट हो सकता है, उसमें 6 आदमी 8 आदमी लगे हुए हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा वर्क फोर्स लगा हुआ है वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, क्योंकि उसको हटा देने पर भी प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। अब अनएडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? एडुकेटेड, इसका भी एक क्वेश्चन लिखो। व्हाट इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? व्हाट इज एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट? Educated. What Yes, is ma'am. educated unemployment? Yes, ma'am. हाँ, आदित्य रीडिंग करो। कोई भी आदित्य, आदित्य कौंडिल्य, आदित्य In हंसराज। case हाँ in बोलो। case of urban area, educated in unemployment has become a common phenomenon. Many हाँ, youth with matriculation, graduation, and post-graduation degrees are not able to find job. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has increased faster than among matriculates. A paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in others. There is unemployment among technically qualified person on one hand, while there is a dearth of technical skills required for economic growth. dearth माने scarcity. Meaning of dearth, DEARTH. Dearth means scarcity of technical skills required for economic growth. यहाँ पे इंडिया में मैम ऐसा पैराडॉक्सिकल का मीनिंग? हाँ मतलब जस्ट अपोजिट, हाँ कॉन्ट्राडिक्टरी जैसे हो गया। तो इंडिया में क्या रहा है कि जो एजुकेशन पॉलिसी ऐसी रही है पुराने समय में, कि अभी तो थोड़ा चेंज होने जा रहा है, उसके रूल्स बन गए हैं कि क्या है कि सिंपली लोग पढ़ाई करते जाते थे, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होते चले जा रहे हैं। ये हालत हो गई थी कि मैट्रिकुलेशन से ज़्यादा वही लोग थे। और क्यों? क्योंकि फिर कोई स्पेशल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई टेक्निकल स्किल वाले लोग तैयार ही नहीं होते थे, और सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इतना ही बहुत ज़्यादा इंडिया में हो गया। तो इस वजह से क्या हो गया कि एक फील्ड में सरप्लस हो गया, मतलब पढ़े लिखे लोग बहुत हो गए, और दूसरे फील्ड में जहाँ टेक्निकली क्वालिफाइड और स्किल्ड पीपल चाहिए वहाँ पे बहुत स्कार्सिटी हो गई। तो ये एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो गया मैन पावर के लिए, मतलब जस्ट अपोजिट कि किधर ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लोग उस तरह के लेबर फोर्स में नहीं जाना चाहेंगे, है ना, जहाँ पे टेक्निकल वर्क करना है वहाँ पे वो नहीं जाना चाहेंगे। So a paradoxical manpower situation is witnessed as surplus of manpower in certain categories coexist with shortage of manpower in other. एक तरफ जहां बहुत वर्क फोर्स चाहिए, लेबर चाहिए, वहां काम करने वाले लोगों की कमी हो गई, और दूसरे तरफ पढ़े लिखे लोग सरप्लस हो गए। तो यही हो गया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, और ये अर्बन एरियाज में ज्यादा देखने को मिलती है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है, जहाँ की लेबर करना है, फिजिकल वर्क करना है, तो वैसे लोगों की कमी हो जाती है, और पढ़े लिखे लोग फिर सिर्फ व्हाइट कॉलर जॉब खोजने लगते हैं। तो ये इसी को पैराडॉक्सिकल सिचुएशन कह रहे हैं, है ना। इस पैराग्राफ को एक बार और रीडिंग करो, और आज इतना ही रखेंगे। Yes, ma'am. In case In of case urban urban areas, In areas, case of educated urban educated area, unemployment educated unemployment employment has has become become a a common common phenomenon. phenomenon. Many youth Many with youth with One at a matriculation, time. graduation, Ma'am, Stop. please and ask anyone to read. post-graduation are not able स्टॉप to स्टॉप find a हियर, job. एक मिनट रुक जाओ। हाँ प्रज्ञा पढ़ रही है तो चलो पढ़ो। Yes, ma'am. In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomenon. Many youth with matriculation, graduation, and post-graduation degrees are not able to find a job. A study showed that unemployment of graduate and postgraduate has